Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? State level pattern of population growth here. The actual growth rate of population is not a uniform in all part of the country. The rate is higher in some part of than in the other. The average decline of the growth in the country was 21.39% during to 1991 and there is the 2001. There is one important period in time is a 10-year difference here. If we are look at the entire state difference, then has been to observe that is a Kerala has the lowest growth rate is a 9.42. 9.42% is very important, whereas the state of the Nagaland has the highest growth rate of the 64.41%. The board rate is a state level of pattern which is emerged is the fact that there is a clear-cut northern-southern divide. All the northern and northeastern state have a recorded high growth rate, whereas all the southern state have a low growth rates here. And this is mainly due to difference in the level of social economical development, which include of high electricity rate here and better primary health care facility and more urban population and more developed economics. There is an important point here. There is a mainly due to difference in the level of social economical development, which include as literacy rate is higher, better is a primary health care facility and more urban population and more development economics here. In this map, there is the most important. India is a percentage calendar growth of population 1991 to 2001. There is the most important here decadal growth of population here. The percent increasing of population 1991 there 2001. There is the most important here. 18% and below here only is white shaded area. There is the Himachal Pradesh and other is Himachal Pradesh is here and the 18 to 21% is the maximum. There is a importance of here a population in a area of mostly show in this year of Punjab. There is a Punjab here. There is a percentage increasing in population as a Punjab here. And there is 21 to the national average is 21.34. There is an important here 21 to 24 here. The maximum side is the Gujarat and Maharashtra. There is Gujarat and Maharashtra on 1991 to 2001. This period of time is most important. And 24 to 27 here a percentage. There is increasing is a massive dark area. There is a Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh also here. And there are 27 to the above. There are mostly the Rajasthan, Jammu, Kashmir, and there is a Bihar also. There is the most important percentage decadal of growth of population 1991 to 2001 here. अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है राज्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के प्रारूप। देखिए राज्य स्तर पर जनसंख्या जो है वृद्धि के प्रतिरूप कैसे होते हैं और इसका क्या भाव है। तो ये सब जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके हम आंसर यहाँ तलाशेंगे कि राज्य स्तर पर जनसंख्या की वृद्धि के प्रारूप किस प्रकार होगी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ होता है। तो कहते हैं भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या की वास्तविक दर एक सामान्य नहीं है। ये तो हमें भी पता है और आपको भी समझ है कि भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या जो है वास्तविक वृद्धि दर देखा जाए तो एक सामान्य नहीं है। हर एक राज्य में जो है जनसंख्या डिफरेंट टाइप्स की जो है ग्रोथ है और वहाँ पर रहने वाले की भी डिपेंड करता है। देश के कुछ भागों में वृद्धि दर अन्य भागों के मुकाबले ज़्यादा है और 1991 से 2001 के दशक में हम पूरे देश की औसत वृद्धि दर देखा जाए तो 21.39% थी। ये जो है हमारा 21.39% जो है औसत वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। यदि अंतर्राज्यीय स्तर पर वृद्धि दरें को अंतर पर ध्यान दें तो पता चलता है कि केरल में सबसे कम वृद्धि दर जो है 9.42%। यानी केरल जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जहां पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है। जबकि नागालैंड में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 64.41% है। देखिए नागालैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सबसे अधिक
प्रतिशत को जो है दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी जो यूपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे जो है जन्म दर वृद्धि दर कहाँ पर अधिक है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है। तो केरल में सबसे कम है और नागालैंड में सबसे अधिक है 64.41%। राज्य स्तर के प्रतिरूपों पर अगर सरस्तरीय तौर पर ध्यान दें तो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि के बीच एक विभाजक की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत एवं पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक वृद्धि दर दर्ज भी हुए हैं, जबकि समस्त दक्षिण भारत के राज्यों में यह वृद्धि दर कम दर्ज हुए हैं। इसका प्रमुख कारण जो है सामाजिक व आर्थिक विकास में बहुत अंतर होना है, यानी आर्थिक विकास में काफ़ी अंतर। आपने देखा होगा कि भारत के भी आर्थिक विकास में काफ़ी जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के राज्य में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जो है व्यापक सुविधाएं, अधिक शहरी जनसंख्या और सुधरी एवं सुदृढ़ जो है अर्थव्यवस्था के कारण जनमानस में जागरूक एवं ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें साधारण सी बात है कि जितना हमारे देश में शिक्षा की स्तर बढ़ेगी उतना जो है जन्म दर भी जो है घटेगा, इसका प्रतिशत भी जन्म दर घटेंगे और मृत्यु दर भी कम रहेगी और जनसंख्या जो है बैलेंस हो जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन अगर व्यक्ति शिक्षित न हो सही सुचारू रूप से तो हो सकता है कि प्रॉब्लम वही रहे। और कहते हैं सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की। कहते हैं हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं हो, लेकिन अभी देखा जाए तो गांव के क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है हर गांव में उपलब्ध अभी नहीं है फिलहाल। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं और अभी भी जो है गांव पिछड़ी हुई नज़र आती है, ठीक है। आप सोचिएगा किसी कई गांव में हो है भी, तो ऐसा कोई अर्थ नहीं, हर एक गांव में होना ज़रूरी है। मैंने भी देखा कई गांव में तो है भी नहीं और कई गांव में तो अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची है। तो बहुत सी बातें हैं जिसका शायद सरकार नज़रअंदाज करती है, तो ये नज़रअंदाज को जो है नहीं देखा जा सकता, ये गलत है। कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं हर एक क्षेत्र में हर एक गांव में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो गांव में रहते हैं उनकी अवस्था गांव वाले ही समझ सकते हैं कि वहां पर अगर किसी को तकलीफ़ या प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कितने किलोमीटर जो है जाना पड़ता है और कितनी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है गाँव के क्षेत्र में देखा जाए तो जन्म दर अधिक रहती है। और ये बात जब तक स्वास्थ्य सेवाएं और वहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं की जाएगी, कहते हैं गांव जो है आगे विकसित नहीं हो सकता है और न ही देश के जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है बैलेंस हो सकेगा। इस मानचित्र में जैसे कि दर्शाया गया है, आपको इसमें जो है जनसंख्या के दशकीय वृद्धि की प्रतिशत के अंतर दर्शाया गया है कि किन क्षेत्रों में जो है जन्म दर यानी जनसंख्या की जो है वृद्धि कैसे हो रही है। तो देखा जाए, देखिए यहाँ पर जनसंख्या के प्रतिशत जो है वृद्धि में दर्शाया गया है। अगर हम बात करें 18 और 18 से कम, तो ये जर्नली सी आप क्षेत्र जो देख रहे होंगे ये कर्नाटका साइड केरल साइड ही दर्शाया गया है। और जो देखा जाए तो कहते हैं ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश साइड भी दिखाया गया है। तो ये 18 से बहुत कम है, जबकि केरल का सबसे कम है। तो आपको भी पता लग गया होगा कि केरल क्षेत्र के जो है सबसे कम है, यानी 9 कुछ समथिंग ही है वृद्धि दर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है कि यहाँ पर 18 से कम के क्षेत्र को यहाँ दिखाया गया है। अगर वही बात करें 18 से 21 के बीच में, तो जनरली हमें देखने को जो है कई क्षेत्र मिल जाएंगे, जैसे पंजाब का क्षेत्र भी दिख रहा होगा, उत्तराखंड का भी दिख रहा होगा और कहते हैं कुछ क्षेत्र जो है असम के साइड भी दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात 21 से 24 अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 21.34 है। कहते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो जनसंख्या के प्रतिशत वृद्धि दर जो है औसत कितनी है, तो इसका है 21.34 है। ये आपको माइंड में रहना चाहिए। और ये क्षेत्र बेखूबी दर्शाई किन क्षेत्रों को गई है, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात इसमें काफ़ी प्रमुख है। और देखा जाए तो एक और भी क्षेत्र है जो कि आपका यहाँ पर जो है कहते हैं झारखंड है, ठीक है, झारखंड भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर हम 24 से 27 की बात करें तो 24 से 27 अगर देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट स्थान हैं। लेकिन देखा जाए अगर वृद्धि दर अधिक मात्रा में जो है किस क्षेत्र में जो है हो रहा है, तो ये भी देखने वाला स्तर जो है 27 से और अधिक है। तो राजस्थान क्षेत्रों में जो काफ़ी है और कहते हैं बिहार में तो है ही है।
और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी ये दर्शाई है। जैसे जो है वृद्धि काफ़ी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर मैप बता रही है और इसको समझना आपके लिए कठिन नहीं है। अगर आप समझ गए होगे तो ज़रूरी है सिर्फ दो बातों का याद रखना कि सबसे कम जो है किस क्षेत्र में हो रहा है और सबसे अधिक किस क्षेत्र में हो रहा है। तो नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर सबसे अधिक है 24, ठीक है 24% है, जो कि सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्शाया गया है। और वही केरल की बात करें तो सबसे कम है 9%। तो यही बात आपको थोड़ा दिमाग में रखना है और एग्ज़ाम को लिए जो है चलना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मानचित्र में अगर 18 से कम की बात किया जाए तो केरल के साइड से लेके आपको देख सकते हो कि यहाँ जो है काफ़ी कर्नाटक साइड से भी सब दर्शाए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अधिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो आपको पता है बिहार क्षेत्र तो सबसे नंबर 1 ही है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का भी नाम आता है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी आ जाता है। तो